Good morning, children. Children, it's your English class, and today I'm going to start chapter 5 pronouns of your English grammar. So, children, this is a very important chapter, and I hope you will study very carefully. Okay, so now let's start. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Children, you know, first of all, we will know what is pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a noun. प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है. ठीक है. प्रोनाउंस हैव एग्जैक्टली द सेम यूजेस एज नाउन्स. इंस्टेड ऑफ repeating names we use pronouns. होता क्या है, जैसे हमें कोई सेंटेंस है, उसमें अगर कहीं पे कोई नाउन यूज़ किया गया है तो उसको बार बार रिपीट करने के बजाय हम नाउन लिखने के बजाय नाउन की जगह पे, नाउन के स्थान पर क्या लिख देते हैं? प्रोनाउन लिख देते हैं. ठीक है ना. अब जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या होता है प्रोनाउन, उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बार फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप लोग. ठीक है ना. द फर्स्ट सेंटेंस इज मैरी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. शी स्टडीज वेल. मैरी is an intelligent girl, and the second sentence is she studies well. So children, in this sentence you will see that here Mary and here the subject is she. यहाँ पे मैरी वर्ड यूज किया गया है और यहाँ पे शी. मैरी एक बुद्धिमान लड़की है और दूसरा सेंटेंस है शी स्टडीज वेल. वह बहुत अच्छे तरह से पढ़ती है. अब आपने देखा मैरी जो लिखा हुआ है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, अगर हम दोबारा से इसी को लिखते मैरी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड मैरी स्टडीज वेल, तो थोड़ा सा ऑड लगता है. ठीक है ना. तो हम जो नाउन बार बार लिखते हैं उसका रिपीटेशन बचाने के लिए, यानी रिपीटेशन कम करने के लिए क्या करते हैं, नाउन की जगह पे दूसरा शब्द लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन. जैसे कि यहाँ पे शी लिखा हुआ है. अब आप देखते हैं ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सब क्या है, प्रोनाउंस ही तो है. इन द above sentence, instead of repeating the name Mary, we have used the word she. Okay, so the word she is a pronoun. Okay children. Some common pronouns are I, we, he, she, it, you, they, us, me, him, her. These all are pronouns. So children, you know these all are pronoun, but these all pronouns may be of different kinds. So now let's discuss about the kinds of pronouns. Children, now we will know about kinds of pronoun. And you know, basically there are 8 kinds of pronouns, and these 8 kinds are personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, interrogative pronouns, and indefinite pronouns. Okay. So children, now first of all let's know about personal pronoun. What is a personal pronoun? The pronouns that stand for persons are called personal pronoun. ऐसे pronouns जो किसी पर्सन के लिए यूज किए गए हों उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल pronouns कहते हैं. A personal pronoun can denote any one of the 3 persons. They are, you know, persons are of 3 types: first person, second person, and third person. First person, second person, and
थर्ड पर्सन. ओके, द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि जो बात कर रहा है वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन होता कौन है? आई. ओके, आई इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन. आई एंड वी कैन से आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन. ओके, नाउ लेट्स नो सेकेंड पर्सन. द सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग टू, यानी जिससे बात कही जा रही है. ठीक है, और सेकेंड पर्सन होता कौन है? यू. ओके, क्या होता है? यू. एंड द थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात कही जाती है, जिसके बारे में बोला जाता है. ही, शी, इट, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन. ओके, चिल्ड्रन, number and case of personal pronouns. Each of the personal pronouns has a possessive form. This form shows ownership. Pronouns do not take an apostrophe in the possessive case. We write mine, theirs, yours, my, our, your, his, her, its, and their. These all are called possessive determiners. Children, now let's discuss this table. Okay, in this table, in the first column, you will see persons: first person, second person, and third person. And first of all, in the second column, you will see subjective, singular or plural. Okay, and next column, objective, singular and plural. And the last column, you will see possessive, singular and plurals. So if you open page number 28 of your grammar book, then you will see this table, and I will ask you that you will have to learn this table properly. Okay, so in this table we will know that first persons are I, singular, and we is plural. Okay, and in objective, I will be me and we will be us. Okay, जब हम I को जो है सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं तो I का क्या हो जाता है? मी. ओके, और जब हम जो प्लूरल है बी, यानी कि नॉमिनेटिव केस में, उसको हम एक्स्टिव में यानी कि ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं तो उसका हो जाता है अस. ओके, ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे आई है सिंगुलर केस में फर्स्ट पर्सन, और अगर उसकी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो उसको पॉजिटिव केस में रखता है ना, यानी कि उस पर उसका अधिकार है, तो वो लिखेगा, क्या लिखेगा? माइन. ओके, एज द बुक दैट यू आर रीडिंग, दैट यू आर स्टडाइंग, दैट इज योर्स. ओके, आई एम सेइंग, बिकॉज आई एम सेइंग, दैट्स वाई दिस इज योर्स. बट व्हेन यू विल से, देन यू विल से दैट it is mine. Okay, and B will be in possessive R's. Okay, like that. Person you, these two singular and plural will be same. Okay, and in objective case, you and you, here it is also same. And possessive case, it is yours and yours. Okay, and the third person, he, she, it will be plural, they only. Okay, and in objective case, he will be him and she will be her, it will be it. Okay, but in the plural objective case, they will be them. Okay, and in the possessive case, he will be his. Okay, and she will be hers, and they will be theirs. ये जो आपको टेबल दे रखी है, इसको अच्छे से आपको लर्न कर लेना है. ओके, नाउ चिल्ड्रन, लेट्स नो अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ टू माय, योर, एक्सेट्रा. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा, जैसे माय है ना, माय में सेल्फ जोड़ देंगे तो हो जाएगा माय सेल्फ. ओके, योर में सेल्फ जोड़ देंगे तो हो जाएगा योर सेल्फ. ओके, अब हम क्या करेंगे,
जैसे हिम में जोड़ दिया तो हो जाएगा हिमसेल्फ। ये सारे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि आप इस टेबल में देखेंगे माई सेल्फ। ओके, अगर हम इसको प्लूरल में करेंगे तो सेल्फ्स हो जाएगा। देखिए क्या होता है, सेल्फ सिंगुलर होता है और सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्व्स। ओके, जब हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो सेल्फ यूज़ करेंगे। ओके, और जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो सेल्फ्स यूज़ करेंगे। ओके, अब इनको ऐड किस में किया जाता है, जैसे माई में, योर में, हिम में, दैम में। ओके, इन सब में यू मतलब जोड़ के हम इसको जब लिखते हैं तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं है कोई वर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ है, द थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस आर सेम। इनमें जो यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं वो क्या है, सेम ही होते हैं। जैसे ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं, ये रिफ्लेक्सिव में भी यूज़ होते हैं और इम्फेटिक में भी यूज़ होते हैं। बट हम इनको पहचानेंगे कैसे, कि जो वर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए कहीं पे माई सेल्फ आ गया किसी सेंटेंस में, तो हम कैसे पहचानेंगे वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन है, इसको कैसे पहचानेंगे, आइए जानते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब भी सेंटेंस की जो वर्ब है उसका रिफ्लेक्शन जो सब्जेक्ट होता है उसी पे पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूँ आई लव माई सेल्फ, मैंने सेंटेंस बोला आई लव माई सेल्फ, यानी कि जो वर्ब है लव, लव का रिफ्लेक्शन किस पे हुआ, मेरे पे हुआ, यानी मैं मुझसे यानी खुद से प्रेम करता हूँ। ठीक है ना, आई सॉ माई सेल्फ, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, क्या देखा, माई सेल्फ, खुद को देखा। यानी कि जब रिफ्लेक्शन जो हुआ वो जॉयर के ऊपर ही हो गया, यानी सब्जेक्ट के ऊपर ही आ गया। जो रिफ्लेक्शन होगा वर्ब का वो कहाँ आएगा, खुद सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब आप एग्जांपल्स देखिए, मोहन फेल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ, मोहन गिर गया और उसने चोट मार ली, किसको, खुद को मार ली। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन किस पे हो गया, खुद मोहन पे, यानी चोट किसको लगी, स्वयं मोहन को लगी। द स्नेक कॉइल्स इटसेल्फ एंड स्लीप्स। ओके, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। ओके, नेक्स्ट, वी वॉश आवरसेल्व्स एवरी डे एंड द पुअर मैन क्रस्ड हिमसेल्फ, दे एंजॉयड देमसेल्व्स। अब यहाँ पे आपने देखा कि जितनी भी वर्ब्स हुई उनका रिफ्लेक्शन खुद सब्जेक्ट के ऊपर ही हुआ। ठीक है, बट इम्फेटिक प्रोनाउंस में क्या होता है, इम्फेटिक में थोड़ा सा चेंज है, इसमें रिफ्लेक्शन खुद सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता, लेकिन होता क्या है, इम्फेटिक, यानी कि इम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसिस करने का मतलब होता है कि किसी पे जोर देना, स्ट्रेस देना, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उस पर थोड़ा सा जोर दे के कोई काम किया जाएगा, यानी कि जो वर्ब होगी थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाएगा, उसको एम्फेसाइज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आवरसेल्व्स सॉ द किंग, यानी कि वी आवरसेल्व्स सॉ द किंग, हमने खुद ही राजा को देखा, हमने खुद ही राजा को देखा। अब देखना यहाँ पे वर्ब का रिफ्लेक्शन जो है खुद पे नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आवरसेल्फ क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ पे उसको खुद देखना पड़ रहा है, यानी कि वो कह रहा है मुझ खुद पे जोर दे के, ठीक है ना, खुद पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करके स्ट्रेस दे के कह रहा है, आई आवरसेल्फ, वी आवरसेल्व्स सॉ द किंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आई माई सेल्फ टोल्ड हिम अबाउट इट, यानी कि मैंने खुद ही उसको बताया, मैंने खुद ही उसको इसके बारे में बताया। They themselves did it. You yourselves know how I have toiled among you. Okay, I hope you have understood the difference between emphatic and reflexive pronoun. Now let's know about demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns क्या होते हैं? Pronouns used to point out the objects, means nouns, referred to in a sentence are called demonstrative प्रोनाउंस। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, जैसे कि सेंटेंस है, दैट इज अ गुड अम्ब्रेला, दैट इज अ
गुड अम्ब्रेला। हम क्या कर रहे हैं, किसी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दैट इज अ अम्ब्रेला, सॉरी दैट इज अ गुड अम्ब्रेला। दिस इज अ प्रेजेंट फॉर माई ब्रदर, पीटर्स पेन better than that of Mohan. These are your books, those are their houses. यानी कि दिस दैट दीज और दो, ये चार वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट? रिलेटिव प्रोनाउंस। So children, a relative pronoun is related to a noun that comes just before it. Okay? Relative pronoun क्या होता है? Is related to a noun, एक noun से related होता है, that comes just before it, जो इससे पहले आया हो। The noun that comes just before the relative pronoun is called its antecedent. Okay? थोड़ा सा याद रखने की चीज़ें हैं इसमें बच्चों, कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के बाद ही तो आता है, किसी नाउन के बाद आता है। तो अब देखा आपने कि रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसी नाउन के बाद आएगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आएगा, नाउन आएगा। तो जो नाउन होगा वो क्या कहलाएगा, इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट। ओके, द नाउन दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। ओके, द रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट इन नंबर एंड पर्सन। ये क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेन दैट आई वॉट, दिस इज द पेन दैट आई वॉट, एंड द नेक्स्ट, आई मेट जॉन हु हैज कम बैक फ्रॉम USA. ओके, दिस इज द पेन विच यू गेव मी। अब इसमें थोड़ा सा ये देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट का दैट है और नेक्स्ट है दैट, उसके बाद में हु और इसमें विच, एंड दिस इज द वाई whom everyone loves, and the last one is this is what you need. Okay, अब इसमें क्या है, the pronoun who is used for persons, which is used for animals and things, and that is used for persons, animals and things. देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउन अगर कोई है तो उसके लिए क्या करेंगे, हु का यूज़ करते हैं, लेकिन कैसा, पर्सन होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। अगर कोई पर्सन है तो उसके साथ हु का यूज़ करेंगे, कोई एनिमल है या कोई थिंग यानी कोई वस्तु है तो उसके लिए विच का यूज़ करेंगे, लेकिन दैट का यूज़ पर्सन, एनिमल और थिंग सबके लिए किया जा सकता है। ओके चिल्ड्रन, now let's know about distributive pronouns. A distributive pronoun refers to person or things one at a time. For example, every one of you must come, each of the children deserves a prize, you can take either of the twice. Okay, means every, each, either, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके, ये किसी एक वस्तु के बारे में बताएंगे, एक बार में, वन एट अ टाइम। ओके, किसी एक वस्तु के बारे में एक बार में बताएंगे, यानी कि एवरी वन, ईच मीन्स प्रत्येक, चिल्ड्रन यानी कि प्रत्येक, ईच ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों में से प्रत्येक। ओके, डिजर्व्स अ प्राइज, यू कैन टेक आइदर ऑफ द ट्वाइस, इनमें से कोई सा ट्वाई ले सकते हैं, यानी कि एक। जब हम सिर्फ एक के बारे में बात करें तो ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, एवरी, ईच, आइदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स नो अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिनका हम यूज़ क्यों करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जब हम क्वेश्चंस पूछने के लिए किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि हुज, विच, हु, हुम, what, etc. Okay, these all are interrogative pronouns. Now let's know about indefinite pronouns. Indefinite pronouns refer to persons or things in general. They do not point to any
वन पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। यानी कि इंडेफिनिट क्या हो, इंडेफिनिट मीन्स हिंदी में भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि जो कोई डिसाइड ना कर पाए, कितने लोग है ना, कितनी वस्तुएं, कितनी चीज़ें है ना, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसके बारे में बात की जा रही है, कुछ भी डिसाइड नहीं है, दैट मीन्स इट इज इंडेफिनिट। ओके, सम आर वॉन ग्रेट। अब यहाँ पे पता नहीं किसके बारे में बात की जा रही, सम आर वॉन ग्रेट, सो दिस इज इंडेफिनिट। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, यानी कुछ डिसाइड नहीं है, किसके बारे में बात की जा रही, अनिश्चित है। ओके, प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल, यानी कि जनरली एक नॉर्मली बात कर रहे हैं, किसी के बारे में ही बात हो सकती है, वो किसी पार्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं की जा रही है। ओके, मैनी ऑफ देम वर सिक, उनमें से बहुत सारे बीमार थे। अब यहाँ पे किसी पर्सनली किसी के बारे में बात पार्टिकुलरली नहीं की जा रही है। ओके, एनीबडी कैन डू इट, कोई भी इसको कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, इसका मतलब किसी के एक के बारे में पार्टिकुलरली हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स एनीबडी वर्ड इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, ऑल इज वेल, ऑल यहाँ तो सबके बारे में बात की जा रही है ना, तो किसी के बारे में पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑल वर्ड क्या है, इंडेफिनिट pronoun. Okay, now your chapter is over. I hope you have understood all about pronouns. If you have any doubt, if you have any problem related to this chapter, then you can ask me personally. Okay, thank you children.